گے, ہمارے پاکستانی اپنی مرضی سے جئیں گے کہ ہم نے کس کانسٹیٹیوشن کے تحت, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت ہم نے رہنا ہے. ہم یہ دہشت گردوں کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. یہ جو اپنی بندوق کے زور پہ وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرے گی. اور ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وی نیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کہ کون ان کو کہاں سے آپریٹ کرا رہا ہے. یہ بہت ہو گئی, بہت ہمارے پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ بہایا گیا ہے. اب ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ان دہشت گردوں کے لیے. اور آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں گے ایٹ اینی کاسٹ. اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے, اس کے لیے ہمیں کسی ایکسٹینٹ پہ جانا پڑے گا. وی ول ناٹ اسپیئر اینی ون, چاہے وہ فیسیلیٹیٹرز ہوں, سمپتائزرز ہوں. اس ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. شکریہ. دیکھیں 55 کے قریب ہمارے شہداء ہیں, جو آپ کا پہلا سوال ہے. جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمے کا ریزولو ہے, مکمل خاتمے کا. اور جو جہاں سے کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے. مفتی صاحب اگر آپ کو پتہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب پتہ تھا, تو پہلے کیوں نہیں روک دیا؟ دیکھیں بات اتنی ہے کہ جو امپیچمنٹ کی پالیسی, جو میں کہہ رہا ہوں نا ہمیں پتہ ہے, وہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو امپیچمنٹ کی پالیسیز مانی گئیں جو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے دیکھا, اس کے لیے ٹالرنس نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم بتائے جائیں کہ کہاں سے پتہ ہے. ہم وہاں سٹرائک کریں گے, ہم جائیں گے ان کے بلوں میں, جہاں وہ بلوں میں پلتے ہیں, جو ان کے لیے سیف ہیونز ہیں. وی ول گو اگینسٹ دیٹ. داعش کا کوئی وجود نہیں. سابق گورنمنٹ نے بھی کہا, بات کی, یہ دھماکہ بھی داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کیا, عبد اللہ کو بھی ٹارگٹ کی, اسی نے قبول کی, بہت لوگوں کو مارا گیا. سب کے جو ٹارگٹ ہیں ان کو داعش نے, جب ہے نہیں تو کارروائی کیسے کرنی؟ دیکھیں آرگنائزڈ پریزنس جو ہے, آرگنائزڈ پریزنس جو ہے وہ اس دہشت گرد تنظیم کی بلوچستان میں اس سے پہلے نہیں تھی. اب ان کے یہ جو حملے ہو رہے ہیں, ظاہر ہے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حملہ کوئی اور کرتا ہے, قبول کوئی اور کرتا ہے. جو مرضی ہو, وہ داعش ہو, وہ ٹی ٹی پی ہو, وہ کوئی اور ہو, کوئی بھی کسی بھی نام پر وائلنس کر رہا ہے, وائلنس جو ہے وہ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرے گی. وہ کوئی بھی, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم جائیں گے. ہم نے اس سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب کا جو واقعہ ہوا, وہ ماسٹر مائنڈ ہم نے مارا ہے. ہم مزید جو یہ لوگ جو فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں, جو بھی کر رہا ہے, وہ کوئی بھی ہو, جو بھی اس کو آپ نام دے دیں, ہمارے لیے یہ سب ایک ہے. سب کی نانی ایک ہے, سب کو ایک جگہ سے ہینڈل کیا جا رہا ہے. را ان سب کے پیچھے اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے اس پر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بیکاز آپ تھوڑی دیر بعد کہیں گے کہ فوراً آپ کو کیسے پتہ چلا. اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے وہ سب انرتھ ہوئے, جتنے بڑے واقعات بلوچستان میں ہوئے, اور سب کے پیچھے جو ہے وہ را کی انوالومنٹ رہی ہے. اور جو وہ پاکستان کو جو قوتیں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, ہم ان کے اگینسٹ جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی اور خفیہ اداروں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, جبکہ گرینڈ آپریشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی روزانہ کی بنیاد پر آتے رہتے ہیں. پھر اس طرح کے واقعات اور ان کے ٹھکانے مکمل طور پر تباہ کیوں نہیں کیے جا رہے؟ یہی مسئلہ ہے, مکمل طور پہ ان کے ٹھکانے ختم کریں گے. یہ ایشو ہے, اس پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دو دن پہلے یہاں پر امن کے حوالے سے میٹنگ ہوئی. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں بارہا یہ بات اٹھائی گئی کہ ٹیلی فون جو موبائل سروسز وہ بند کرنی یا نہیں کرنی, کسی نے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا. کوئٹہ میں امن امان اگر برقرار ہے تو موبائل فون ایسے موقع پر بند کیے جاتے ہیں. مصنوع کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیوں موبائل فونز بند نہیں کیے گئے؟ دوسری بات سر, کل سوشل میڈیا پر ایک افواہ چل رہی تھی کہ ڈی سی اور جو ایس پی ہیں وہ معطل کیے گئے. کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں یہ ڈی سیز یا ایس پیز کے معطل ہونے کے حوالے سے جان صاحب یا ہوم منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک تھورو انسپیکشن کریں گے اپنے سیکورٹی کا, کہ ہمارے جو پیراڈائم سیکورٹی کے تحت ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا 12 ربیع الاول کے حوالے سے اس سے پہلے کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے. دس از دا فرسٹ ایور ان بلوچستان جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہوئے. اس سے پہلے ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا, محرم کے حوالے سے ٹارگٹس ہوئے, ان جگہوں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹارگٹ ہوئے. تو اس کے لیے ایس او پی سیٹ کر دی گئی تھی. آیا اس کے لیے جو ایس او پی سیٹ کی گئی تھی وہ پروونشل گورنمنٹ اپنے لیول پہ دیکھ رہی ہے. اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, دس از ویری کامن کہ اگر کہیں سیکورٹی لیپس ہوگا تو وائی وڈ اینی بڈی وانٹ ٹو اسپیئر دیم, چاہے وہ ایس پی ہو, چاہے وہ ڈی سی ہو.
जो मर्जी हो उसको कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट यकीनन उसको स्पेयर नहीं करेगी। लास्ट क्वेश्चन 2013 में टू क्वेश्चन प्लीज लास्ट टू क्वेश्चन। आज 2023 आ गया तब भी मस्तूल के हालात खराब हैं, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभल रहा, कैसे पूरे सूबे में ऑपरेशन होगा? और जो डेरा बुक्की से फुटबॉलर्स अगवा हुए थे क्या वो बाजियाब हुए या उनको छोड़ा गया है? देखिए 4 तो जो हैं वो आगे हैं और बाकी 2 भी इंशाल्लाह ताला बाजियाब हो जाएंगे। जहाँ तक रही बात कि चाहे 1 इंच हो, देखिए आप इस लड़ाई को समझने की कोशिश करें, ये दहशतगर्दी की जंग जो आप लड़ रहे हैं, ये स्ट्राइक करने का हमने एक इंच को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो दहशतगर्द है उसने किसी 1 इंच पे स्ट्राइक करना है, ये जो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है टाइमिंग की और जगह की, तो हमने ये तहैया कर लिया है, रियासत ने ये तहैया कर लिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस। मसला क्या है? मसला मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मसला हमारे यहाँ ये है कि हम एक सर्टन लेवल पे पहुँचते हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, चाहे वो कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी है, चाहे वो मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी है, एक सर्टन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं और फिर ऑल ऑफ सडन हमारी स्टेट जो है वो इम्पीचमेंट पॉलिसी पे आ जाती है और हम अपने जो उसको है कम कर देते हैं। अब हमने ये फैसला किया है कि अब ये नहीं होगा, हम जाएंगे आखिरी दहशतगर्द तक, इंशाल्लाह ताला इनका कला कमा करेंगे। शुक्रिया जी। थैंक यू सर। निगरान वज़ीर दाखिला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया, हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, उनके बिलों में घुसकर उन्हें ख़त्म करेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं, मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ का धंधा आम। पंजाब में गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। ग्रोह में सर्जन, डॉक्टर, टेक्नीशियन और दीगर अफराद भी शामिल हैं। ग्रोह में शामिल एक मोटर मैकेनिक ने गुर्दों की 25 सर्जरियां की। गैर कानूनी ट्रांसप्लांट नेटवर्क के ज़ेरे हिरासत सरबरा फवाद मुमताज़ असलहे के जोर पर फरार हो गया। मुलजिम फवाद मुमताज़ को पुलिस अटक जेल से चंद रोज़ कबल लाहौर लाई थी। 2 मुसल्लह अफराद ने अहलकारों को असलहा दिखाकर फवाद मुमताज़ को फरार करा लिया। फवाद मुमताज़ मुतअद्दिद चीनी सऊदी बाशिंदों के गुर्दों के ट्रांसप्लांट कर चुका है। अदाकार उमर शरीफ की बेटी का ट्रांसप्लांट भी फवाद मुमताज़ ने किया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताइएगा। लाहौर की जानिब से दावा किया गया कि इन्होंने पंजाब में जो है गुर्दों की जो गैर कानूनी पैबंदकारी है, ट्रांसप्लांट का बड़ा नेटवर्क जो है पकड़ा है। इस हवाले से गैर कानूनी जो है ट्रांसप्लांट में मुलविस जो है सर्जन, डॉक्टर, टेक्नीशियन और दीगर अमला भी शामिल है। जो पुलिस राय का कहना है कि एक जो इस मुबैना सरबराह इस गैंग का डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान, इसको जो है इसके साथियों ने जो है पुलिस जब निशानदही के लिए ले जा रही थी असला के ज़ोर पे इसको जो है लेकर फ़रार हो गई। इस हवाले से जो मुलजिम फवाद खान ने फ़रार हुआ है, इस वाक़े का मुकदमा थाना काना में जो है वो अब दर्ज कर लिया गया है। जो सब इंस्पेक्टर हैं थाना गार्डन टाउन, उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है। एक जो मोटरसाइकिल मैकेनिक है, पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि उसने 25 से ज़ायद जो है सर्जरीज़ भी कर डाली हैं। इस हवाले से मज़ीद पुलिस जो है तहकीकात भी कर रही है। गिरोह जो है लाहौर समेत दीगर शहरों में जो है किराए के घर लेकर जो है वहाँ पर आर्जी हस्पताल कायम करके वहाँ पर ये गुर्दों के ट्रांसप्लांट का जो है ऑपरेशन करता था। इस हवाले से जो पुलिस ज़राए का मज़ीद कहना है कि डॉक्टर फवाद मुमताज़ है, इसके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद जो है मुकदमात भी दर्ज हैं और ये पुलिस को मतलूब भी था, इसको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन पुलिस जो है जब इसको अटक जेल से जो है निशानदही के लिए लाहौर लाई तो रास्ते में ले जाते हुए जो है ये डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान, इसके साथियों ने जो 5 पुलिस एहलकार थे उनको जो है असला दिखाकर जो है वो फ़रार करवा दिया गया है। पुलिस हुकाम जो फ़रार होने वाला डॉक्टर हैं फवाद मुमताज़, उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिश है। इस हवाले से मज़ीद जो पुलिस राय का कहना है कि जो सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना काना में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सर्जन जो है फवाद मुमताज़ चीनी, सऊदी और दीगर जो गैर ममालिक के बाशिंदे हैं उनके जो है गैर कानूनी तौर पर गुर्दों के जो पैबंदकारी के ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट हैं उसमें भी ये मुलविस है। इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है। मुलजिम जो है इस 2006 से जो है ये गैर कानूनी जो है गुर्दों की पैबंदकारी के ऑपरेशन कर रहा है और ये इस गैंग का सरगना भी है। जी ये बताइएगा, अब तक कितने मुल्ज़िमान को पकड़ा जा चुका है, कितना मुनज़्ज़म गिरोह है ये? देखें जी, जो मुल्ज़िमान हैं काफ़ी हद तक जो है
पुलिस ने गिरफ़्तार कर ली हैं। जो ये मुबैना सरबराह था फवाद मुमताज़ ख़ान, ये पुलिस की जो है गिरफ्त से जो है फ़रार हो गया निशानदही के लिए ले जाते हुए। इसकी भी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है छापे मार रही हैं। पुलिस ज़राए का मज़ीद कहना है कि जो ये डॉक्टर फवाद मुमताज़ है, जो इसके साथियों ने इसको फ़रार करवाया है, पुलिस जल्द ही इसको गिरफ़्तार भी कर लेगी। मुतअद्दिद जो है ये लोग जो हैं इस गैर कानूनी जो पैबंदकारी है इसमें शामिल हैं। गैर मुल्कियों के ये लोग जो हैं यहाँ पर मुख्तलिफ जो किराए के घर जो हैं वो लेकर वहाँ पर आर्जी हस्पताल बनाकर जो है यहाँ पर ये ऑपरेशन करके लाखों रुपए जो है अब तक बटोर चुके हैं जो गैर मुल्की अफराद हैं इनसे। जी शाहिद, मुलजिम फवाद को कैसे फ़रार कराया गया? हालांकि आपने बताया कि असलहे के ज़ोर पर उन्हें लेकर गए, वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे, ऐसे कैसे फ़रार करा लिया गया उसको? देखिए जी, 5 पुलिस एहलकार जो हैं, पुलिस ज़राए का कहना है कि जो डॉक्टर फवाद मुमताज़ ख़ान है, जो मुबैना सरबराह भी इस गैंग का बताया जा रहा है, वो जो है पुलिस एहलकार उसको जो है काना के इलाके में लेकर जा रहे थे। वहाँ पर जो है यहाँ उन्होंने एक घर लेकर वहाँ पर जो है आर्जी हस्पताल भी बनाया था जहाँ पर ये ऑपरेशन भी गैर कानूनी तौर पर किए गए थे। उसकी निशानदही के लिए जो रास्ते में जो है उसके साथ ही 2 असला के दौर पर आकर इसको फ़रार करवा के जो है डॉक्टर फवाद मुमताज़ को अपने साथ ले गए। पुलिस की जानिब से जो है मज़ीद जो है इसकी जो फ़रार होने के बाद तलाश का सिलसिला भी जारी है। यहाँ ये आपको बताते चलूँ कि पुलिस राय का मज़ीद कहना है कि जो डॉक्टर फवाद मुमताज़ ख़ान है, इसने जो अदाकार थे उमर शरीफ, उनकी बेटी का भी जो है गैर कानूनी जो है ट्रांसप्लांट किया था। जी शाहिद रिजवी वाक़े की तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पंजाब के डिवीज़न और इजलास के सदूर और सेक्रेटरी जनरल का इजलास। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत की गई। मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान की रोशन तकदीर नवाज शरीफ हैं। अवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात की ज़मानत नवाज शरीफ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदनियों लाहौर वकास गौरी से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मॉडल टाउन में मरियम नवाज जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मुस्लिम लीग नून की, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें पंजाब के डिवीज़न सदूर और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी शरीक हुए। मरियम नवाज ने 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के पर उनके इस्तकबाल के हवाले से तफसीली मुशावरत की है, जबकि मरियम नवाज का ये कहना था कि कौम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और आवाम को महंगाई और महंगे बिलों से निजात की ज़मानत सिर्फ नवाज शरीफ ही दे सकते हैं। उन्होंने जो पार्टी के दीगर रहनुमा थे उन्हें इस्तकबाल की जो तैयारियां उन्हें मजीद मौसर बनाने और दायरा कार वसी करने की भी हिदायत की। वकास गौरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। FIA ने ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी। FIA ने असद उमर को मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान मजबूत गवाह बन गए। कम बैक, यहाँ आपको बताएं, अर्बन सिटी लाहौर की कामयाबी के बाद अर्बन सिटी वेंचर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन अर्बन सिटी और अर्बन सिटी वेंचर शेख अहमद दाऊद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर के मकामी होटल में तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी शेख अहमद दाऊद ने कहा, सिर्फ 6 माह में अर्बन सिटी के तमाम प्लॉट्स फरोख्त हो चुके हैं। अब अर्बन सिटी वेंचर का इफ्तिताह भी कर दिया है। अर्बन सिटी वेंचर में बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं जो अगले चंद रोज़ में सामने आएंगे। उन्होंने शानदार इवेंट के इनकात पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में को चेयरमैन मियां मुश्ताक और डायरेक्टर अर्बन सिटी अकील डार समेत कसीर तादाद में रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से तफसीली मुशावरत मुकम्मल। पार्टी ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने लीगी क़यादत की बाहमी रजामंदी से अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कानूनी टीम को लाहौर हाई कोर्ट से 3 से 7 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मिलने का यकीन है। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से तफसीली मुशावरत मुकम्मल हो गई है। इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा न्यू वकास गौरी। जी वकास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कायदे लीग की वतन वापसी पर जो कानूनी रुकावटें हैं, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम की मुस्लिम लीग नून के बड़ों से मुशावरत जो है मुकम्मल हो गई है। कानूनी टीम ने कायदे लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुशावरत की है। पार्टी राय के मुताबिक कायदे लीग की वतन वापसी से 2 रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी और कानूनी टीम को हाई कोर्ट से 3 से 7 रोज की हिफाजती जमानत मिलने का यकीन है। पार्टी राय के मुताबिक हिफाजती जमानत की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारे नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे और नवाज शरीफ जो है वतन वापसी पर जलसा करने के बाद सोमवार को अदालत में सरेंडर कर देंगे। जी, वकास गौरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।